This is April 16, 2021. In the last session, students, we have discussed about capacitance. If anyone is having the doubt regarding this, before starting the Nuna, I am giving the brief summary of the chapter. Capacitance is ability to store charge और एनर्जी। तो किसी भी कंडक्टर में जब आप ना क्या करते हो, उसका चार्ज इंक्रीज करते हो तो उसका एनर्जी लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हेन charge of a conductor is increased, then its potential, अभी पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों बातें होगी एक साथ। पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो किसी भी कंडक्टर में ये कंडीशन होगी कि कंडक्टर का आप क्या करो, चार्ज इंक्रीज करो और उसका पोटेंशियल विल बी इंक्रीज। रीजन, कंडक्टर और कंडक्टर के ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्ज इंक्रीज किया। तो एज यू इंक्रीज द चार्ज, देन द फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, एंड व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, then the work done in bringing the unit charge also increases. This is the conductor of the radius r. I said you q proportion to v. It means if you are increasing the charge, then the voltage also increases. So you always get a straight line in this. When you replace the proportionality sign, then you introduce a constant, and this C is known as capacitance of conductor. Capacitance of conductor. This capacitance of conductor is basically meant by how much charge a conductor is storing. And when you say that the charge is stored, it means the energy is increased. So as you are continuously increasing the charge of a conductor, then its energy level also increases. तो आप कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते जाइए, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। दिस इज अ सिमिलर फिनोमेना ऑफ द स्टोरिंग द वाटर इन द ओवरहेड टैंक और इन द डैम। You are storing the water, but basically you are storing the energy. Got it? So when you say that the conductor ka charge is increased, it means its energy or its potential is also increased. Got it? So we discussed about the capacitance. So capacitance is basically measured as a C, and the C can be given as Q upon V. So its SI unit was taken as farad. इसका SI यूनिट फैराड में दिया गया। This is page number 1 of period number 4. This much we have discussed. As well, we obtain the capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor. So that formula was C equal to 4 pi epsilon naught into R.
This was the condition when the conductor is in air. When conductor is in air. And when the conductor is in medium, so Cm was given as a 4 pi epsilon naught K. सर एक बार फर्स्ट पेज बता दिए, आप शुरुआत से बता दीजिए. So I am giving the summary of the previous discussed. I have not discussed anything new because I am giving the summary of the previous. So in the previous, we discussed about the capacitance. Sorry, we discussed about the capacitance. Capacitance is the ability to store the charge or the energy. So when you increase the charge of a conductor, its energy also increases. When you increase the value of the charge on the conductor, then its potential also increases. So Q is always proportional to V. Q equal to CV. C is the capacitance of the conductor, which is measured in the terms of the Farad, because this theory was discovered by the Michael Faraday. And then after I said with the spherical conductor, जो spherical conductor है उसकी conductivity capacitance का formula is C equal to 4 pi epsilon naught into R. This is the condition when the conductor is in air, and this is the condition when the conductor is in medium. So you see what exactly is happening when I say you that the charge of a conductor is increased continuously. When charge of conductor is increased, continuously. तो मान लीजिए कि आपके पास में ये कंडक्टर है, आप इसका चार्ज लगातार इंक्रीज करते जाओ. सर चार्ज इंक्रीज करते जाओगे, इट मींस इसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, है ना? देन इट्स एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस. सर ये भी पिछली क्लास में ही है. हाँ जी सर. सर ये भी पीछे वाली क्लास में ही है ना, अब यहां से नई बात शुरू कर रहा हूं. बिल्कुल यहां से ये जो ब्लू इंक लिए मैंने, दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू. तो मैंने कहा किसी भी कंडक्टर को व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कंटिन्यूअसली, देन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस. नाउ यू सी आई सेड यू द कंडक्टर इज इन ईदर एयर और इट इज इन मीडियम. एयर और वैक्यूम, मैं फ्री स्पेस की भी बात कर सकता हूं. मैं अगर बात करूं इफ कंडक्टर इज इन फ्री स्पेस, if conductor is in free space, then after increasing, then it may get worse. ये भी कह सकते हो. Then it may explode due to its own energy. देखो, this is a new concept. What I am saying, I said you that suppose you are having a conductor. मान लीजिए आपके पास में conductor, and the energy of the conductor is continuously increased. And energy means that means you are giving the charge continuously. So when you give continuous charge, so its energy level will increase, its electric field will increase. You are saying that this conductor is placed in the vacuum. Vacuum, there is nothing. तो बिल्कुल वैसा ही होगा. साइकिल के टायर में हवा भरते जाओ, बलून में हवा भरते जाओ, बलून में हवा भरते जाओ. देयर इज अ लिमिट, and then if that limit is approached, then after that this object will get burst. So if a conductor is placed in the free space, that means there is the absence of the medium, and you are continuously storing the energy. What I am saying, you are getting it? अगर मैं कंडक्टर की एनर्जी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाऊंगा, then there will be a possibility that this conductor may explode if the charge or the energy is getting beyond a limit. But when you say but if conductor is a medium,
what if conductor is in सर इस चैप्टर में सिर्फ कंडक्टर ही है। any medium? I am not getting what you are saying. Repeat. सर इस चैप्टर में कंडक्टर की बात होगी सिर्फ। Yes, sir. This time we are discussing about the conductor. Got it? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. सर अगर हम फ्री स्पेस में हैं कोई भी और हम उसे एनर्जी दे रहे हैं तो उस पर फर्क क्या पड़ेगा? कोई नहीं, आप क्योंकि सर उस पर कोई फोर्स तो लगेगी नहीं ना। आप एक बात को सोचो, आप यू सपोज हर ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में ले जाइए, ठीक है, ब्लैक होल कैसे बन गया? व्हाट डू यू मीन बाय द डेथ ऑफ द स्टार? Because the continuously the mass of the object was increasing. When the mass of the object is continuously increasing, it means its gravity is continuously increasing, and due to its own gravity it get collapse. ये अपने आप के अंदर ही कोलैप्स हो गया। मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास में ये 5 रुपए का कॉइन, ये जो आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे आसपास में कुछ नहीं है, कंटिन्यूअसली इसका इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन कम होता जाए या इसका मास बढ़ता जाए, तो इसकी अपनी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। जब इसकी अपनी ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो ये अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट को अपने पास में अट्रैक्ट करेगा, और इतना अट्रैक्ट करेगा, इतना अट्रैक्ट करेगा, इतना अट्रैक्ट करेगा, that this becomes a dense matter and then it will explode itself. What I am saying, are you getting now? Yes, sir. ठीक है, the same thing happens with a charge object. Suppose the charge object is located in infinity, or sorry, in free space, and you are continuously increasing the charge. My dear, there is a limit of the charge. There is a limit which you can eat. आपके स्टमक की एक लिमिट है, आप इससे ज्यादा खाओगे ओवर ईटिंग हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। The same thing happens with the conductor or the तो सर फिर मीडियम पे भी, एक्सक्यूज मी सर, जी, तो सर मीडियम पे भी फिर सेम जैसे हम एनर्जी। on the medium, I give you a very interesting thought about it. If this condition of the free space is clear, then please say यस सर। free space it will explode due to its energy. तो कंडक्टर को आप अनलिमिटेड चार्ज नहीं दे सकते। अगर फ्री स्पेस में है तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा, अगर ये मीडियम में है तो क्या होगा? नाउ सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज, सो व्हाट विल हैपन इफ सपोज इट इज ए मीडियम? मान लीजिए यहां पर एयर है, मैं केवल एयर की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एयर? Air is basically O2 and 2 molecules. These molecules are having positively charged nucleus, है ना? इसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके दो पार्ट होंगे। तो व्हेन यू से दैट देयर इज एन एटम, मॉलिक्यूल में ढेर सारे एटम्स होंगे और ये क्या होगा? इसकी चारों तरफ की ऑर्बिट होगी। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने अपनी चॉइस से दिखा दिया, ये मत कहना कि ऑक्सीजन में O2 O है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 ही लिखाना चाहिए था। ठीक है, मैंने अपनी चॉइस से ले लिया। तो दिस इज ठीक, मान लीजिए O2 था, ऐसे करके एक एटम। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and a negatively charged electron. If you remember the method of the charging by induction, what will happen? That this atom will get destroyed. All the positive and all the negative will get to the one side. This is known as the method of the polarization. My dear, listen it carefully. This is the method of the polarization. But you are saying that I am continuously increasing the charge of the object. Before it get explode itself, what will happen? Its positive will start attracting the electron towards it, and this positive will be repelled. So this electron will be this positive will be moving in the medium. अब अगर चार्ज मूव करने लगे, चार्ज अगर मूव करने लगे
तो ये पॉजिटिव यहां से एक लेयर बनाकर निकलेगा, इसकी वजह से मीडियम में करंट आ जाएगी। सर एयर इंसुलेटर था, एयर कंडक्टर बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर यही आसमान से प्लीज रिपीट। बिजली गिरने का जो लाइटनिंग का केस है, दिस इज द सिमिलर वन, दैट द क्लाउड्स व्हेन द चार्ज इज स्टोर्ड, then the electric field of the cloud increases, and when the electric field becomes sufficient high, then the water molecule, oxygen molecule and the nitrogen molecule, they get polarized first. And if the electric field of the cloud become greater than a limit, then the polarization get the worst effect, and that is known as dielectric breakdown. Dielectric breakdown means an insulative medium become conductive in effect of high strength field. High strength of electric field. So whenever you are continuously increasing the charge of a conductor, then its electric field will increase. If it is placed in the medium, then the surrounding will get polarized. And after that, if again you are continuously increasing the charge, then the polarization second grade will happen, that the medium will get dissociated in the ions. एक्सक्यूज मी सर। Hmm. सर इसमें जब हम मीडियम में रखेंगे तो दो काम होंगे ना, एक तो सर पार्टिकल खुद एक्सप्लोड होगा और दूसरा वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी करेगा। एक्सप्लोजन लास्ट लिमिट है। एक्सप्लोजन इसमें होगा लेकिन वो बहुत बाद में होगा। अभी तो मैंने आपसे केवल इतना कहा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड चल रहा है। आप अज्यूम कर रहे हो कि आपके पास में ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल में पोलराइजेशन होगा, पहली चीज। यस सर। अगर पोलराइजेशन हो गया और उसके बाद भी मैं चार्ज इंक्रीज करता रहूं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से, यस सर। it means the medium becoming conductive. Yes, sir. So what will be happening first? The dielectric Sir, breakdown will be happening dielectric first. breakdown. Dielectric breakdown will be occurring first. And even then, Yes. if you are continuously increasing the charge, then that is the second condition, that this will be explode. And because what I said you in the free space, because in the free space there was the absence of the medium, so dielectric breakdown cannot occur in the free space. That's why you went only on the one step, that is the explosion. But when you are in the medium, then what you are saying that because the medium is getting polarized and the dielectric breakdown is taking place, so first the medium get conductive. आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, आसमान से बिजली गिरती है तो अखबारों में आता है कि भैंस झुलस कर मर गई। सर दिस इज द रियल इवेंट। आप यू सी इमेजिन करो कि मैंने दो वायर को ऐसे करके यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे फैन के दो वायर रख दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को एक रख दिया मैंने, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? आंसर इज नो। लेकिन आप जरा गौर से देखो कि क्लाउड से, बादलों से जब बिजली गिरती है तो धरती पर आकर गिरती है। और सर उस जगह की किसी ने नोटिस किया कभी लाइटनिंग का केस, या कभी सुना हो? टेलीविजन पे भी Yes. अगर आप देखेंगे तो जैसे ही बिजली आकर अर्थ को स्ट्राइक करती है, जो लाइटनिंग होती है, सर उस जगह पर के जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्पेशली सारे डैमेज जाते हैं। रीजन, उस जगह पर जो पोटेंशियल होता है ना, दैट बिकम मोर देन द 220, ये एक्सीड कर जाता है 1000 वोल्ट से भी ऊपर। अदरवाइज इसमें जो कैजुअलिटी ना वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज द करंट कॉजेस हीटिंग। तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आप YouTube पर वीडियो लगाकर देखना, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो जिस ट्री पर आके गिरेगी सर वो ट्री पूरी तरह से जल चुका होगा। किसी ऑब्जेक्ट पे आके गिरी होगी, वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से जल चुकी होगी। रीजन क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज, जब से इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, और वो हीट इतनी ज्यादा होगी दैट द सब्सटेंस गेट बर्न आउट। एंड यू सी इन द होल, I said you in the beginning that please remind me once, in electrostatic,
in electrostatics, we discuss only round shape object. हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी कभी बनाने की कोशिश की है, हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिए, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, हमने कभी भी ना शार्प ऑब्जेक्ट लेके नहीं चले. दिस इज द एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट. Action of sharp point. What do you mean by sharp point? A sharp point whose area is very less. This time 12 people are present with me. I am naming out all these. This is Anya, Ariva, Ayush, Devansh, Fawaz, Tansh, Harshita, and Prateek Pandey, Sakshi, Srishti, Utkarsh, and Viren Bita. This is clear to all. Yes, sir. सर एक बात पूछनी थी सर आपसे. दो बातें पूछिए सर. You are free to ask. सर कभी भी मीडियम में कोई रखा है तो सर क्या कहते हैं पार्टिकल कभी एक्सप्लोड ही नहीं करेगा क्योंकि सर वो अट्रैक्शन करता रहेगा. फिर से बोलिए, फिर से और बोलिए. मतलब सर जो पार्टिकल है सर, जब हम उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे तो सर हमेशा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता रहेगा, तो कभी पार्टिकल तो एक्सप्लोड ही नहीं करेगा ऐसे तो. होगा, घटना होगी. क्या सर? क्या है ना, पता है होता क्या है, होता क्या है. What I said you that these are the electrons and these electrons are moving towards it. तो इसका पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली क्या होगा ना, डिक्रीज भी हो रहा होगा. तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के बाद में इसका अपना खुद का चार्ज कम हो गया है ना, तो इसमें एक्सप्लोजन के Yes, sir, चांसेस that's right. बहुत रेयर होंगे. हाँ वही तो. इसमें एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत रेयर होंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाओ, सब पॉसिबिलिटीज आ रही है. सो व्हेन यू सर लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर भी दिया तो सर एयर तो for a minute एयर listen, तो. for a minute listen. यस सर. So suppose the question becomes, what will happen if the charge to a conductor is given beyond a limit? Your answer will be classified in the two fashions. Number one, if the conductor is placed in the free space, it will explode, and if the conductor is placed in the medium, then dielectric breakdown will take place. Got it? Yes sir. Got it? Anyone having any doubt regarding? Yes, सर नोट डाउन कर लें. सर नोट कर लें सर. यहां से नोट करना है आपने ब्लू इंक से. सर एक कुलम्ब्स लॉ में सर एक डाउट था सर. सर कब पूछ लूं सर मैं? आप मैं आपको टाइम दे देता हूं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको टाइम बता देता हूं. ठीक है, वी आर हैविंग फिफ्थ पीरियड आल्सो. हां, आफ्टर दिस 10:25 you will be having the 15-minute break. Yes sir. And then 10:40 you will be having the another class. Please write Yes down. sir. एक बार वीडियो में समझा दीजिए. सर आपकी वॉइस बीच बीच में कट रही है सर. My sound is getting distorted. You try to connect again. You try to connect again. Because now my side, I am getting good distance of the signal. And you can notice that how much bandwidth is received. Zoom पर लिखा हुआ आएगा bandwidth received, low bandwidth, high bandwidth. तो मेरी तरफ से जो सिग्नल आ रहा होगा आप उसको एक बार चेक करो, अगर ऐसा होगा तो आई रिकनेक्ट, अदरवाइज यू रिकनेक्ट वंस. ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट? मे आई प्रोसीड? Yes, sir. Yes sir, second page. So this is the polarization. This is the method of the charging by induction, but the charging by induction is having the second effect that the dielectric breakdown take place. सर एक बार ये मीडियम वाला बता दीजिए दोबारा. बिल्कुल सर.
What I said you that suppose a conductor, कोई भी एक conductor is placed in any medium and you are continuously increasing the charge of it. मैंने मीडियम के तौर पर एयर माना, एयर वो की इंसुलेटर है, एयर द वन विच इज इंसुलेटर. इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है. लेकिन जितना भी मैंने कंडक्टर को रखा, कंडक्टर को चार्ज करता गया. अब एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स का मतलब विच आर मेड ऑफ द एटम्स. ये एटम से मिलकर बने होंगे और एटम में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. You said because you are giving the positive charge to the object, then the medium, this oxygen or the nitrogen will get polarized. Polarization means the total negative will accumulate to the one side and the total positive accumulate to the another side. If you continuously increase the electric field of charge on this conductor, then there is a possibility that the electrons are being ejected out from the atoms. ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल आएंगे. अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकल आए बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से निकल रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट दिस विल बी गिविंग अ रिपल्शन फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव वंस. ये पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल होगा. इट मींस इफ यू आर हैविंग अ बॉडी व्हिच इज हैविंग अ ह्यूमरस चार्ज, जिसमें बहुत सारा चार्ज है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द चार्ज, देन द मीडियम विल गेट पोलराइज्ड. मीडियम के इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, और उसका पॉजिटिव रिपेल होकर दूसरी तरफ जाएगा, और उसकी वजह से मीडियम में एक करंट कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी. This event is known as a dielectric breakdown. The dielectric breakdown is the phenomena of the getting conductive of an insulating medium. हर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अलग होता है. फॉर एयर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन is 10 to the power 6 volt per meter. It means in the air, if the electric field is greater than 10 to the power 6 volt per meter, then air will get conductive. And that's why the common civilian are not supposed to go in a high transmission lines area. पावर हाउस के पास में लिखा हुआ होता है, जहां पर सब स्टेशन होगा पावर हाउस का, सर वहां पे लिखा होगा danger, don't enter without permission. Reason of this, because वहां की एयर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होती है, और हो सकता है कि इंसान अगर वहां पर जाए और उसे बगैर किसी मटेरियल को टच किए हुए भी उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन ब्रेकडाउन होने लगे. This much is done. Is this clear to all? सर जो ये सर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी वजह से रिपेल होगा? बेटा एक बार फिर से बोलो. सर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी वजह से रिपेल होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज एक स्ट्रीम की तरह से मूव करना शुरू करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये किस तरफ जाएंगे? अपने से. क्यों? क्योंकि ये देखो ये हायर पोटेंशियल है, तो ये अपने से लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे और क्या करेंगे? पूरे में करंट बनाते हुए जाएंगे. तो ऐसा होगा जैसे आपको लगेगा कि एक करंट फ्लो कर रही है बगैर वायर के, ठीक, तो वो कंडक्टिव पाथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो और उस ऑब्जेक्ट पे जाकर इंसिडेंट होगी जहां पर भी इसका लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा. Got it? Now you see what I said in electrostatic. सर मतलब लोअर पोटेंशियल मतलब अर्थ की तरफ जाएंगे लोग. देवांश, यस सर. saying something. ये सर मैं कह रहा हूँ सर, जब लोअर पोटेंशियल होगा तो ये अर्थ की तरफ जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. अर्थ इज अ जीरो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्लाउड से जब कभी भी लाइटनिंग होगी, तो क्लाउड से अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लाउड का केस अगर मैं लेकर चलूं, क्लाउड में दीज आर द क्लाउड्स मान लीजिए. अब क्लाउड्स में भी ना जब एयर चलती है तो फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. दिस इज एयर. अब जब फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी होगी तो रबिंग होगी, देन some air particle will get the acquire the electron, some air particle will lose the electron.
जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते जाएंगे वो चार्ज नेगेटिव होता जाएगा, और नेगेटिव क्योंकि हैवी होता है इसलिए वो नीचे की तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये अर्थ है, इसके बीच में एयर पार्टिकल्स हैं। एयर पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। यहां पर क्या होगा कि जब ये मीडियम के अंदर ये पार्टिकल्स आएंगे तो वो, ये मान लीजिए ये एटम था, तो ये एटम का पॉजिटिव ऊपर आएगा और नेगेटिव नीचे जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो एटम्स में क्या हुआ, ब्रेकेज हो गया। एटम का पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स द क्लाउड एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। इट मींस द इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स द अर्थ लाइक ए स्ट्रीम इन द, तो एक फाइन स्ट्रीम की तरह से जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इट मींस द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू क्लाउड। गॉट इट? This is the mechanism of the lightning. So what I am saying, action of the sharp point. A sharp point meant by small area. तो मान लीजिए कि that I am having an object which is like this. When you give the charge to this object, then the charge will be distributing on the surface of it. Charge इसकी surface पर distribute होगा. But you see here the charge accumulation. You can see. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूं तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। I believe that you people agree with me. अभी मैंने लास्ट सेशन में प्रूव कराया, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय E इक्वल टू सिग्मा, एंड दिस सिग्मा इज बेसिकली Q अपॉन A. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. So this is the less area, this is the sharp point, less area, high strength of electric field. This is more area, low strength of electric field. It means here the electric field. So suppose I am having an object which is having a sharp point, तो sharp point पे electric field ज्यादा हो जाएगी. So if the charge is given, if the charge is given to the sharp point, then its electric field become more than dielectric strength of given medium. So suppose that this is the conducting object. अब इसके पास में मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखिए, मान लीजिए दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. इस जगह पर हाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यहां पर आएगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट में से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से सुनिएगा सर, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इसकी तरफ आने शुरू. दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी होगा. यानी कि ये क्या करेगा, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर लेगा. ठीक है, और ये खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव होंगे फिर ये पॉजिटिव एयर में स्प्रेड हो जाएंगे. आप जानते हो इसका नाम क्या है? Someone please tell me what should be the name of it? Dielectric breakdown. What I have written here? कोरोना. सर आप अगर कोरोना का वायरस का डायग्राम देखो
उसमें भी ऐसे ऐसे करके शार्प पॉइंट बने हैं। इट इज स्प्रेडिंग रैपिडली, इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। ये कोरोना इज बेसिकली अ मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग स्प्रेड वेरी फास्ट। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। What I am saying, listen it again. What I am saying, that when the charge is given to a sharp object, at the sharp point, the strength of the electric field is more. And if it's becoming more than the dielectric strength, then dielectric breakdown take place. Dielectric breakdown हो जाता है, तो dielectric breakdown हो जाएगा, then the charge will spread in the whole medium very fast, and charge will spread in the whole medium very fast. So this type of the, अब डिस्चार्ज क्यों गया? क्योंकि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने नेगेटिव से मिला, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और इसका पॉजिटिव जो था वो सराउंडिंग में फैल गया, तो लोगों को लगता क्या है कि इसमें से पॉजिटिव निकल कर फैल रहा है ना, इसमें से पॉजिटिव निकल कर फैल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ discharge is known as कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्यों हुआ सर? मतलब कोरोना मीन्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। जब सोलर इक्लिप्स होता है माय डियर, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, और जब मून सन को छोड़कर चलता है तो एक रिंग बनती है, उसको भी कोरोना कहते हैं, इफ यू रिमेंबर। सर एक बात समझ में नहीं आई, जैसे सर जो पॉजिटिव होगा वो फास्टली जाएगा या फिर स्लोली जाएगा? फास्ट जाएगा, क्योंकि सर बीइंग रिपेल्ड, ये रिपेल हो रहा है पॉजिटिव, है ना। अब उस फास्ट और स्लो सर का मेजरमेंट मत करने लगना कि अरे इसकी स्पीड ये, इसकी स्पीड ये। सर ये पूरे मीडियम में स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो जिस लाइन पर इलेक्ट्रिसिटी का इंसिडेंट होता है क्लाउड के थ्रू, वो पूरा एरिया इन्फेक्टेड होता है, और उस पूरे एरिया में, अभी लास्ट ईयर ना इसी तरह से ये अप्रैल या मई का महीना था, और वो लॉकडाउन भी था, घर पे मेरा सेल्फ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और बारिश हुई अचानक में, और मेरे घर के बिल्कुल पीछे वाले टेंपल पर आकर बिजली गई। सर मेरे घर के और मेरे घर के आसपास के सारे घरों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज हो गए थे। तो ये इन्फेक्टेड एरिया है, हाई वोल्टेज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड हो गया, हाई वोल्टेज आ गया, इस जगह से जो चार्ज लीक हो गया। इसीलिए आप कभी भी ना पूरे में आप देख लो, आपकी बुक्स जो बने हुए होंगे उसमें कहीं पे भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट होंगे, न्यूमेरिकल में बेशक कह दिया एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा है, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप कभी भी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं दे सकते। इसीलिए टॉप बिल्डिंग्स के ऊपर जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं वो शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके ऊपर चार्ज आए तो तुरंत ही लूज भी हो जाए। A sharp object cannot store charge. So storage is having a problem, and what problem is that? Lesser than a minute is left, so I am just binding it. ठीक है, and then after you are having the 15-minute break, you may go and take your refreshments. ठीक है, खाली पेट मत रहिएगा, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन थोड़ा तेज फैल रहा है। ठीक है, और घर में रहिए, घर से